Good evening, one and all present here for this wonderful occasion. I would like to invite our Honorable Chief Guest, Mr. Puneet Gakreja, founder of Gravity Wealth Management. Mr. Puneet Gakreja was about 38 years old, working with UTI Mutual Funds before starting Gravity Wealth Management in Udaipur in 2016. He has served thousands of clients since then and has built an AUM of 50 crores through his consistent efforts. He specializes in senior citizens as clients and has a very unique way of convincing clients and helping them improve their financial behavior. Welcome, Mr. Puneet. Over to you. So actually we have today Puneet. He's my childhood friend, bachpan ka dost hai from Udaipur, and he's a very successful wealth manager in my hometown Udaipur. So we'll hear more from him. But before that, I had a couple of announcements. So one is, which I think has been a demand for a long time. We have our partner app now ready for release, where there are a couple of new things which you can do now on the partner app. One is you will be able to uh, not only see term plan quotes, but also for our focus products like HDFC Life Click to Protect, you'll be able to do complete transaction end to end. And you will also be able to complete mutual fund transactions, unlisted transactions, tracker sync that all of you have been anyway have been able to do on the web app. You can also will also be now be able to do on a mobile app. We are ready to release, so that app has been tested now end to end, and there's still a lot of work to do, but I think that the app will be available to you sometime in the coming week. So that I hope, and the team has worked really hard last 45 days to bring it to all of us, and I hope that can solve some of the issues that partners have been pointing out to in terms of ease of transaction, right? Secondly, I think couple of financial products or couple of wealth management products that I want to bring your attention to for this month, right? So, and these two wealth management products are at extreme end, right? So one of them is a debt product. It's a structured debt product. Minimum ticket size is about 10 lakh rupees. It is what people call a market linked debenture or a structured debt. The advantage of this is just like a debenture. The advantage of this is that it has got an equity like taxation. So your taxation is 10%, and it is a 27-month holding period product with 9% IRR, right? 9% return. So 9% in this market where FDs are at practically post-tax 3.5%, right? It's a great product, and it is from a very well run NBFC, and so that is something that I definitely minimum investment size is 10 lakh rupees there, and for you as a partner, it's about 8,500 of revenue for per debenture. So per debenture, it's 10 lakh rupees, almost 10 lakh rupees, 10 lakh 5,000 or 10 lakh something like that. But that's a product that is an interesting product in this market, which you definitely should, if you have clients that are looking at debt returns and understand how market linked debentures work, or if you can explain them, it's a good product to focus on, right? Secondly, of course, I think on equity side, since markets are rallying, I think one of the products that we have been sort of suggesting, and I think that some of those products are unique to us, are also these pre-IPO stocks. I think we have a couple of names, right, that I think we've heard about. Lava Mobile, right? That I think you must have heard from your relationship manager. So that's an again interesting opportunity. But keeping in mind, so both of these products are meant for people who have a slightly higher net worth. So not for these are not really uh, products for clients or profiles who are new to investing or new to capital markets, right? So these two products are focus products for February, and you should definitely speak to your RM more about it, and definitely plan to close some transactions here, because these are unique products. You'll be able to close the transactions quickly, and as I said, and decent revenue as well. Right. And of course, I think this is I think now 60 days, for 50 days, 55 days left for the closure of tax saving season. So definitely ATC products like ELSS and term plan, and even guaranteed return products like Sanchay Plus, right, as well as ATT products like health insurance. I think those are something that are growing in demand. We are also seeing a lot of our partners doing, who are not active also for some time. They've been ended up doing five transactions because clients are now looking to save taxes. So I think that definitely should be a part of what your month's strategy or month's plan is, right? So even if you have
clients that you reached out to 3 months back, you can reach out to them again with ideas on tax saving and tax saving products. So that definitely should be a part of your strategy for this month. Anyway, so I'm also I'm eager to now hear my friend Puneet talk to you all. So let me give you a very brief background about Puneet. So we know each other from, I don't know, from 15 years, maybe more, since so we're together in school. And Puneet, जैसे कहते हैं ना, बचपन का यार, is one of those friends. And Puneet ने अपना career financial services शुरू किया था, and before starting becoming an entrepreneur, he was working for UTI AMC, and वहीं पे उसने decide किया कि he will become an entrepreneur, and that's when he started. He saw an opportunity in wealth management in India, and he started his firm called Gravity Wealth Management, and in last 4.5 years, he has built about 50 crores of AUM for himself. So all of you who have been in with us for some time, we keep telling you about how if you are at it, AUM is possible, and Puneet is an example who's built 50 crores of AUM all on his own as a single person entity on his own. And what I love about Puneet is very practical, right? He knows what to speak to clients, and at the same time he has also helped clients create wealth, and that has helped him become a very successful wealth manager, not just in Rajasthan region, but across the country. So Puneet, yes. So Puneet, I think you can unmute yourself now. So we'll, I mean, I'll go ahead and ask. And if Hi Puneet, and if any of you have questions, you can type in the chat for Puneet, and we can definitely take that up. बट मेरा पहला क्वेश्चन तो पुनीत यही है कि किस दिन सोचा और किस दिन डिसाइड किया कि अब खुद का करना है, खुद एंटरप्रेन्योर बनना है और फाइनेंशियल एडवाइजर, कैसे हुआ? ग्रेविटी शुरू होने का पूरा प्रोसेस बताओ थोड़ा। Thanks, first of all, Aditya. Thanks to Aditya and Team Wealthy for giving me an opportunity to talk to, co-industry players. Yes, colleagues, हाँ, colleagues, yeah. यार भाई ऐसा है कि I came to know, actually मुझे नहीं पता था, I came to know before 2004 anybody who joined government service is they are eligible for lifetime pension. अब वो एक ऐसी चीज थी जो बड़े अपीलिंग है। अब एग्जैक्टली वही चीज जब मैं यूटीआई में जॉब कर रहा था, आई रियलाइज कि यार दिस इज दी ओनली वे कि आप अपने लिए लाइफ टाइम पेंशन बना सकते हो। अब उसके अंदर क्या था कि अगर यूँ देखा जाए तो अपने को अगर आई वाज वर्किंग विद यूटीआई एएमसी, तो अब कंपनी अपने से काम करवाएगी टिल 50 एज, जो अपनी वर्किंग एज है, एंड देन सिंपल टाटा बाय बाय। तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट वे, you can create a kitty for yourself and then for your coming generation. Hello, is my voice reaching you? Yes, I think वो हम दोनों ही म्यूट हो गए थे थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए। ओके, तो वही बस उसी दिन ये डिसाइड किया यार, ये काम तो बहुत अच्छा है, बस अब मेहनत करने वाली बात है। तो उस दिन बस कंपनी वालों को बोला थैंक यू, अब 58 तक तो मैं अपने लिए इतना बना लूंगा कि आने वाली जनरेशन ही बोलेगी कुछ करके गए। तो शुरुआत करने से पहले क्वेश्चंस क्या थे दिमाग में, डाउट्स क्या थे? यार डाउट्स तो बहुत सारे, क्योंकि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट इजी। और फिर क्या, मेरा बैकग्राउंड, माय फादर वाज आल्सो इन जॉब। तो फिर उसके बाद हाँ, ये अच्छी बात थी कि इस चीज का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था कि हाउ टू कन्विंस पीपल। एंड देन एक बहुत अच्छी चीज है कि अपने जो अगर बात करें रूल ऑफ 72, आई गेस एवरीबॉडी वुड बी नोइंग अबाउट इट, कि भाई अगर 8% ना आता है 9 साल में डबल होता है। तो उन दिनों वो उनको सुना मैंने एक बार, मिस्टर ब्रजेश डालमिया, उन्होंने इतनी बढ़िया चीज बोली कि अपना जो बिजनेस है, म्यूचुअल फंड बिजनेस, this is something in which you can double your AUM in every 2 years. अब how he has given a पूरा उसका फ्रेमवर्क दिया है। फ्रेमवर्क बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको अपना जो भी आपका एसेट है
उसका 1% का ऐसे भी बुक करना है। लेट्स से आपका ऐसे 10 करोड़ है तो आपकी ऐसे भी बुक 10 लाख होनी चाहिए। तो अगर 10 लाख है तो ये आपको 12% की ग्रोथ दे देगी, क्योंकि भाई हर महीने वो 10 लाख रुपीज आएंगे आपके पास। नेक्स्ट थिंग व्हाट ही सेड एंड आई आल्सो फॉलो इट, कि आपको हर महीने 1% की नेट सेल्स करनी है। नेट सेल्स आई गेस इट्स क्लियर कि भाई जितना आ रहा है और जितना उसमें से जा रहा है, जो इनफ्लोज है माइनस आउटफ्लो, जो नेट सेल्स है दैट शुड बी 1% ऑफ योर एयूएम। अगेन वो जो 10 करोड़ और 10 लाख की नेट सेल्स होनी चाहिए। एंड देन द थर्ड थिंग इज कि हम वैसे ही मानते हैं मार्केट्स में इतनी ताकत है कि 10 से 12% तो दे ही देगा। तो 12 into 3 36, अगर 36% की ग्रोथ है तो हर 2 साल में आपका ऐसे डबल हो जाएगा। तो बस इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं और अभी तक तो 5 साल में ये चीज अच्छे से फॉलो हो गई है। वेरी नाइस। तो 3 चीज है, आई विल रिपीट। पहली तो ये कि जितो आपका एसेट बेस है उसका 1% का एसआईपी बुक, उसी का 1% का नेट न्यू सेल्स, और फिर मार्केट की ग्रोथ ऑलमोस्ट 1% ऑन एन एवरेज महीने की होती है, तो दैट ब्रिंग्स अस टू 36% ग्रोथ इन 1 year on assets, and 36 obviously those that by rule of 72 it will double in 2 years, right? तो पहले साल कितना AUM किया था, और वो ये हर साल डबल हो रहा है, और कब तक नेक्स्ट ईयर हर साल डबल हो रहा है? कैसे, हाउ इज इट गोइंग नाउ? नहीं, एक्चुअली हर 2 साल में डबल होगा, और उसके लिए भी फिर एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई थी। बिफोर लिविंग द जॉब मेरे पास एक ब्लैक डायरी, उसमें सब कुछ मैंने लिख रखा था कि कितने साल में कितना एसेट अचीव करना है। राइट। मतलब उसकी भी एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी थी, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में क्या होता है कि योर ग्रॉस सेल्स इज नेट सेल्स। पहले 3 साल बहुत ज्यादा रिडम्पशंस आते नहीं आते, सही बात है। हाँ, तो स्ट्रेटजी सिंपल है। पहले साल आप कुछ भी अचीव करो, इट कैन बी 1 करोड़, इट कैन बी 50 lakhs, इट कैन बी 2 करोड़, पहले 4 साल उसको डबल करते चलो। उसके 3 साल बाद आप उसको 1.5%, मतलब उसको 1.5 करते चलो, और उसके 3 साल बाद उसको 1.25 करते चलो, आपको 2 करोड़ लगभग 70-80 करोड़ बन जाएंगे। और तो कितने, ये स्ट्रेटजी पे वर्क। राइट। और शुरुआत में मतलब कैसे शुरू किया? पहला क्लाइंट कौन था? पहला क्लाइंट तो एक्चुअली क्या है, उसमें मुझे थोड़ा सा बेनिफिट जस्ट बिकॉज आई वाज फ्रॉम एएमसी बैकग्राउंड, तो उसमें हेल्प मिल गई मेरे को। तो फर्स्ट ईयर वाज आई डिड समवेयर अराउंड 5 crores इन द फर्स्ट ईयर। ओके। और कितने क्लाइंट्स थे लगभग 5 करोड़ के लिए? कितने क्लाइंट्स? 5 crores में देयर वर अराउंड 80 to 90 clients. Okay. And right now I am serving around 1,000 clients. So actually this is what I wanted to come to all of us, right? कि 1,000 clients possible है. It's actually possible in India, because in India majority लोगों के पास investing सही से नहीं करते, majority लोगों के पास term plan नहीं है, majority लोगों के health plan नहीं है. Like the field is wide open, and like Puneet has, and I think it's just between you. You have done it alone, except for your staff, but otherwise it's only you, right, who has done it himself. Yeah, exactly. और ये सारे उदयपुर में क्लाइंट्स हैं या ऑल ओवर राजस्थान, इंडिया? नहीं, इट्स एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड? ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। बिकॉज उदयपुर तो आई डोंट थिंक आई हैव मोर देन 40% एरिया इन उदयपुर। अच्छा। रेस्ट इज आउटसाइड, जस्ट बिकॉज आई डिड माय एजुकेशन फ्रॉम आउटसाइड उदयपुर। तो फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, उनसे रेफरेंस, देन सम फ्रेंड्स आउट ऑफ इंडिया। So it's basically, network marketing kind of thing, or there you keep on getting referrals. Right. If your way of style is, correct, then you are bound to get referrals. Right. So actually, I am in this position that I don't, take walk-ins. Until unless if somebody is from some reference, I normally don't entertain. Directly I don't entertain them. फिर वो staff को दे देता हूँ कि यार you go and get them. So this actually is a question for all of us, right? That if Puneet can do 1,000 clients, granted he had some benefit कि वो AMC background से था, और थोड़ा maybe knowledge थोड़ा better होगा, I don't know क्या, थोड़ा network होगा maybe initially, but initial few days की बात है. But serving 1,000 clients as a single person founding company, it is just amazing. So I think that should, I hope that inspires all of us to also think in that direction, not think in one client a month direction, but think in the direction of 1,000 clients.
So Priya has a question. Priya, I'll answer your question. Priya has a question that NRI KYC seems quite complicated. So NRI KYC is complicated for people who are from US, UK, and Canada. Otherwise, for other countries, it's not so complicated. So I think those three countries are the ones where NRI KYC is an issue. Otherwise, it's not so much of an issue, right? Or Puneet, any client segment that you initially focused on या specialize in, थोड़ा या किस तरीके से क्लाइंट सेगमेंट करते हो, थोड़ा हमको सबको थोड़ा सा उस पे इनसाइट्स दो कि हाउ डू यू सेगमेंट योर क्लाइंट्स एंड अकॉर्डिंगली आप उसमें अपना स्ट्रैटेजी उनके साथ कैसे उनके इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हो या उनके साथ कॉन्वर्सेशन कैसे मैनेज करते हो? Aditya, actually, what I believe is means if a person whose age is more than 60, तो फिर तो उसका बिजनेस मुझे मिल ही जाएगा. अच्छा. और इनफैक्ट 60 के ऊपर का है तो उसका पूरा 100% पाई मिल जाएगा. अच्छा. उससे कम का है तो फिर वो बहुत सारी चीजें होती है. अगर अपनी एज का है तो he knows most of the things और फिर all the online stuff. But 60 के ऊपर वाले को क्या होता है कि actually those people don't want returns actually. उनका रिटर्न्स इतना नहीं है. उनको चाहिए सेफ्टी. उनको चाहिए कि there is a person who is taking care of my money. And then at the end, when I am not there, it would be a cakewalk for my children to have that money. तो अगर उनको वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, वो कई बार फर्स्ट मीटिंग में नहीं होता है, पर हाँ अगर वो धीरे धीरे वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो इट्स वेरी इजी टू गेट मनी फ्रॉम दैट. क्योंकि उनको रिटर्न्स कुछ भी नहीं. मतलब अगर तुम बात करो तो मैं मेरे क्लाइंट्स को सिंपल बोलता हूँ कि सर आपके लिए रिटर्न्स कितने जरूरी या कितने % रिटर्न आने चाहिए कि यू वुड फील लाइक नहीं यार ठीक है. तो आदमी बोलता है 10, 12, 15 मिनट किसके लिए. मतलब वो रिटर्न्स किसके लिए चाहिए, फॉर वो किसके लिए चाहिए. तो मैंने कहा कि साहब रिटर्न्स तो आ जाएंगे लेकिन उसके लिए रिस्क लेनी पड़ेगी. अब अगर आप उसको एग्जांपल दें, लेट्स से कि मैं उनको एग्जांपल देता हूँ कि अगर यहाँ से मुझे जयपुर जाना है, उदयपुर से इट्स समवेयर अराउंड 400 किलोमीटर. और 400 किलोमीटर अगर जाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप अपनी कार जो है 60 से चला सकते हो, 80 से चला सकते हो और 120 से भी चला सकते हो. अब अगर वो 120 से चलाओगे तो एक्सीडेंट होने के, मतलब एक्सीडेंट तो किसी में भी हो सकता है, लेकिन 120 की स्पीड पर अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो अब आप खुद देख लो सर आपकी एज और एक 60 पे. और अब आपको और दूसरी चीजें होती है कि सर एक काम करता हूँ, मेरी गाड़ी है होंडा सिटी, आप इसको 120 की स्पीड में चला सकते हो, या चाबी लो मुझे एक बार चला के दिखाओ, आप चला लोगे. तो बोलता है नहीं यार मैं तो 40 के ऊपर जाता ही नहीं. तो मैं रिटर्न में 12-15% क्यों मांगते. भाई सेफ्टी ऑफ रिटर्न मनी इज मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने कमा लिया बहुत कुछ जो आपको कमाना. अब तो ये है कि सेफ्टी से होना चाहिए. तो ये एक ऐसा क्लाइंट सेगमेंट है जो अगर उस क्लाइंट सेगमेंट का बंदा है तो मींस मेरे को लगता है कि उसका 100% पाए मुझे नेक्स्ट 1-2-3 मंथ्स में मिल ही जाता है. तो कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है एक्चुअली. हम लोग रिस्क like we do risk scoring and we try and figure out कि client का risk appetite क्या है, but client को अगर आप इतने simple example समझाओ कि आपको point A से point B जाना है, आपको decide करनी है speed according to what your अब client बोलेगा मैं खुद चला रहा हूँ, मैं 60+ हूँ, तो definitely I am okay taking longer time, right? Such a great example. That is amazing. But जब obviously जब 60+ है तो उनके बच्चे भी होते होंगे involved decision making में या नहीं होते, और बच्चों को फिर अपना thought process. हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, दो चीजें होती है. अगर बिजनेस वाला क्लाइंट है और फिर बच्चे उनके साथ बिजनेस में है तो वो इन्वॉल्व होता है. अगर सर्विस वाला है तो वैसे भी उसको ये होता है कि यार जब तक मैं हूँ पैसा भले मेरे बच्चे को पता ही ना चले, और जब मैं नहीं हूँ तो ये पैसा बिल्कुल आराम से उनके पास पहुंच जाना चाहिए. चलो वो बताने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि अगर इसको पता लग जाएगा कि आई हैव अ करोड़ और 2 तो हो सकता है वो मेहनत ही ना करे. तो इसलिए वो बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड होते नहीं है. क्यों बताना, राइट. ठीक है, एक आइडिया सबको होता है कि भाई हाउ मच हिज फादर हैज, देन दे से नॉर्मली मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि वो कहते हैं कि जब पता भी है तो ज्यादा डिस्कस नहीं करना उनके साथ. और 60+ क्लाइंट्स भी ऑल ओवर इंडिया या उदयपुर में है ज्यादा? एक्चुअली उसमें भी वही चीज है कि स्टार्टिंग में उदयपुर है लेकिन रेफरेंस फिर अक्रॉस इंडिया अक्रॉस वर्ल्ड ही मिलता है. अच्छा, रेफरेंस फिर एक क्लाइंट से दूसरा क्लाइंट, दूसरे से तीसरा. तो ये बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं. जैसे क्लाइंट आई हैव इन मुंबई, वो मेरे पास आया जब उनका ऑलरेडी 1.5 करोड़ वाज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन थ्रू सम डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बड़ौदा, और वो पूरा इक्विटी था. पूरा इक्विटी था.
पूरा इक्विटी था। 2018 के टाइम आया जब मार्केट में एकदम फॉल आया था, स्पेशली इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। तो उनको भी मैंने धीरे धीरे यही चीज समझाई कि आपको इतना रिटर्न या इतना रिस्क किसके लिए चाहिए। अब नाउ आई मैनेज अराउंड 80 वो 1.25 करोड़ अभी भी वहीं पे पड़ा है, बट उसके बाद उन्होंने मुझे भी 80-90 लाख रुपए थे। और वो मेजरली डेट और बैलेंस एडवांटेज काइंड ऑफ फंड्स में है, इक्विटी जब ऑलरेडी वहां पे है तो मैंने नहीं दिया। बट हाँ ये जरूर है कि वो वहां का पोर्टफोलियो भी मुझसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनके कुछ रिलेशन में तो he will not touch that money। हाँ तो बस पर ठीक है, he asked from me only कि भाई अब करना क्या, तू बोल दे, I will instruct it। Right, makes sense। और रिटायर्ड सेगमेंट के अलावा और किस तरह के क्लाइंट्स है, कोई इंटरेस्टिंग क्लाइंट्स, कोई इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो तुम यूज करते हो क्लाइंट्स को कन्विंस करने के लिए? क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है ना इंडिया में कि यार जैसे गाड़ी कितना देती है वैसे ही कितना देगा, राइट? तो वो उस क्वेश्चन से लोगों को हटाने में ही थोड़ी एनर्जी लगती है, राइट? दैट इज वेयर आई थिंक रोल ऑफ एन एडवाइजर इज दैट व्हाई डू यू नीड टू मैं अभी तुमसे एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं। जस्ट फ्यू डेज बैक आई हैव अ क्लाइंट हु इज डॉक्टर, हिज वाइफ गॉट रिटायर्ड, मींस शी इज अराउंड 40 और वो क्या आर्मी में थे तो वहां पे थोड़ा रिटायरमेंट जल्दी हो जाता है। और वो मार्केट्स को लेके वो लाइक कि नहीं मेरे को तो बिल्कुल मार्केट में नहीं डालना है, पर वो जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने बुलाया, बोले यार एक बार डिस्कशन कर ले। तो उनके साथ जो डिस्कशन हुआ मैं 2 मिनट में तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, हाउ आई ट्राइड टू कन्विंस हर। तो उनके क्या 2 छोटे बच्चे हैं, एक 1 is 10 and 1 is 7। तो मैंने कहा कि मैम आप एक चीज को समझे, पैसा जो है ना बड़ा इमोशनल, आपके भाई इमोशनल बॉन्डिंग होती है भाई, एग्जैक्टली सेम है जैसे आपके बच्चों के साथ होती है। अब आप अपने बच्चों के साथ क्या चाहेंगे कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, वो सेफ रहे। एग्जैक्टली यही 2 फीलिंग आपको अपने पैसे के साथ भी चाहिए होगी। आप आज तक एफडी करते हैं, एफडी में क्या मिलता है भाई? सेफ्टी मिलती है और ये है कि जब मुझे चाहिए मैं निकाल सकती हूँ। लेकिन अब आप ये आपके बच्चे जो 10 साल के हैं, ये 18 के होंगे, तब आपको इनको बाहर भेजना पड़ेगा। आप भेजोगे नहीं भेजोगे? तो बोले कि हाँ भेजना पड़ेगा। तो मैं क्यों भेजोगे? क्योंकि आपको उनकी ग्रोथ भी जरूरी है। आपके सेफ्टी और भाई आपके साथ ही रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आपके एक्सेसिबल रहेंगे, लेकिन आप उनकी ग्रोथ के लिए क्या, उनकी ग्रोथ के लिए आप उनको अपने साथ ही रखोगे, बाहर भेजोगे? बोले नहीं भेजना पड़ेगा। मैंने एग्जैक्टली आप यही गलती अपने पैसों के साथ कर रहे हो। पैसा आपके साथ है, एफडी में है, सेफ है, सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी वेट नहीं हो रहा है। अब अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब आपका बच्चा बाहर जाएगा, उसको कुछ भी होगा तो वो रिस्क तो है ना, बट यू विल टेक इट, क्योंकि ग्रोथ के लिए जरूरी है। बस आपको वही, मैं एक्चुअली वही होता है जब पुनीत के साथ बैठता हूँ ना, मुझे पेन और पेपर पास में रखना चाहिए, बिकॉज इसके पास ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो क्लाइंट से कनेक्ट करते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज तक किसी से नहीं सुना ये कि किसी ने मनी और बच्चों को इतना क्लियर कंपैरिजन दे दिया, लाइक अमेजिंग कंपैरिजन है, और उससे एकदम से बात समझ में आ जाती है। सो दैट इज उसके बाद वो थोड़ी देर में कन्विंस हो गए और 40 लाख का चेक उन्होंने दे दिया कि यार तुम देख लो, मेरे को 10 साल पैसे नहीं चाहिए, एंड देन इतनी रिस्क नहीं होनी चाहिए। अब उनके जो हस्बैंड थे वो बोले कि नहीं अपन इक्विटी करेंगे। मैंने कहा सर क्यों इक्विटी करेंगे? मतलब वो मैंने कहा सर वो कॉल ले लेंगे अपन, बट वही वाला फिर एग्जांपल कि आप 120 की स्पीड पे गाड़ी क्यों चलाना चाहते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है। व्हेनेवर वी ट्राई टू सेल रिटर्न्स ना, वो क्लाइंट बहुत लंबे चलते नहीं। सही बात है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट्स सेलिंग रिटर्न्स will not get you far, like any I have also seen that personally, because every client's need are different। किसी को चाहिए ही नहीं वो रिटर्न 15%, बट उसको बस वो नंबर एक, एंड मेजॉरिटी क्लाइंट्स इंडिया में एफडी से कुछ बेटर दे दो और सेफ होना चाहिए। मेजॉरिटी तो इंडिया को अभी भी यही चाहिए कि एफडी से कुछ बेटर दे दो और जब मैं चाहूँ तब निकाल लूँ और कुछ सेफ होना चाहिए, राइट? एंड कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स मिलते होंगे who would be like कि नहीं मैं तो खुद से करके कुछ बेटर कर सकता हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लूंगा, देखो 3 महीने में पैसा डबल हो गया। ऐसे भी क्लाइंट्स मिलते होंगे। ऐसे क्लाइंट्स कन्वर्ट होते हैं, नहीं होते हैं? ऐसे क्लाइंट के साथ क्या एक्सपीरियंस है? देखो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ मार्केट्स आर परफॉर्मिंग। अभी तो मार्केट ऐसा है कि किसी में भी पैसा डालो पैसा बनता हुआ, तो पैसा बनता हुआ दिखता है। तो वही है ना कि अभी तो एवरी पर्सन थिंक्स कि यार ही नोज एवरीथिंग। मतलब आई वाज हियरिंग समबडी और वो बोले कि जब तक मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं होगी तुम्हारी और मेरी, ही वाज एन एमसी गाय, फंड मैनेजर, तो वो बोले कि जब तक मार्केट में वोलेटिलिटी होगी तुम्हारी और मेरी वैल्यू भी नहीं बनेगी। तो वो है कि अल्टीमेटली फिर आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स है कोट करने के। लेट्स से
अब लोग कहते हैं कि मैं तो ब्लू चिप ले लूंगा और ब्लू चिप में तो पैसा बनता ही बनता है, कोई भी स्टॉक लेके बैठ जाऊंगा। तो उनको एग्जांपल देना पड़ता है, भैया 2008 में डीएलएफ वाज 1200, एट दैट टाइम इट वाज अ ब्लू चिप, आज भी ब्लू चिप है, बट करंटली इसका प्राइस है 300 350, तो वो तो ब्लू चिप था। वोडाफोन एट वन पॉइंट इन टाइम वाज अ ब्लू चिप, 300 प्राइस था, आज क्या प्राइस है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप सब कुछ कर सकते हो, इट्स नॉट सो इजी। ठीक है, तुक्के लगते हैं, आप तुक्के आराम से लगाओ। एंड देन अच्छी बात ये भी होती है कि अपने को ये पता है कि ओनली 4% ऑफ पीपल पुट मनी इन म्यूचुअल फंड, 96 बाकी है, तो आप एफर्ट उसके साथ मारो तो थोड़ा इजी है टू कन्वर्ट, और फिर वही रेफरेंस के बाद वो प्रॉब्लम इतनी आती नहीं। ये बात सही है एक्चुअली कि एफर्ट उन पे मारो जो इजी टू कन्विंस है। जस्ट एक्सपैंड, जस्ट ब्रॉडन योर नेट में ऐसे लोग तो कुछ आएंगे जिनको जो इजियर टू कन्विंस है, so focus on that for those guys first, right, as clients rather than trying to convince everyone। ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है कि कई बार क्या होता है, हम 10 लोगों को जानते हैं, हम उन्हीं में लगे रहते हैं कि यार इसको किसी तरीके से मुझे कन्विंस करना है, और फिर वो वहाँ पर 2-3 महीने निकल जाते हैं और फिर that's when the cycle starts कि यार I'm not getting the returns that I want from the effort, right? And how do you deal with younger clients जो कि 25, 26, 27, 28, 29, 30 इस तरह की एज ग्रुप, बिकॉज वहाँ पे अलग सेंटिमेंट इज स्लाइटली डिफरेंट, राइट? तो वहाँ पे तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि दोज पीपल आर नॉट एक्चुअली गोल ओरिएंटेड। अगर एक आज 25-26 ईयर ओल्ड पर्सन से तुम बात करो और उससे रिटायरमेंट की बात करो तो वी वुड बी लाइक, भाई आर यू एक्चुअली टॉकिंग टू मी? भाई रिटायरमेंट इज फार अवे, अभी क्या मुझसे बात करो, राइट? तो पहला गोल जो होता है ना, वो पहला गोल जो अगर सपोज अ पर्सन हु इज स्टार्टेड हिज करियर, उसका पहला गोल, मैं तो मैरिज नहीं बनाता हूँ, उसके हनीमून बनाता हूँ। हनीमून, वो एक हनीमून, हाँ, क्योंकि वो एक ऐसी चीज होती है जो सिंपल है यार, तुम्हारी शादी तुम्हारे घर वाले करा लेंगे, पर हनीमून के पैसे तो उनसे नहीं मांगोगे ना, राइट? और उस समय पहला लोन लेने से बढ़िया है कि आज उसकी सेविंग स्टार्ट कर लो। भाई लेट्स से 26 ईयर ओल्ड पर्सन, वो मान रहा है 28 में मेरी मैरिज होगी, तो इट्स 24 मंथ्स डाउन द लाइन। अभी ठीक है कोविड हो गया, पर आप इंडिया के बाहर घूमने जाओगे तो इट वुड इजीली कॉस्ट यू 2 to 3 lakhs। तो 24 मंथ्स में अगर आज 3 lakhs इकट्ठे करना है तो उसको पहली चीज तो समझ आती है यार थोड़ा बहुत तो कर दो। सही बात है। तो उसके लिए वैसा ही गोल, अब ठीक है, अ न्यू गैजेट और ईयर एंड सेल जो भाई मार्च के आसपास, मार्च जनवरी और अगस्त में लगती है, एवरीबडी नोज इट, सब बाय करते हैं, अमेजन पे बाइंग होती है, सब कुछ होता है, पर उसके लिए पैसा आप पहले से रेडी कर लो। तो उनके साथ वही गोल्स की बात करते हैं जो उनको अपील करे। तो ये बहुत सही एक्चुअली ना। तो इसमें पुनीत के साथ बातों में 3 सेगमेंट बन गए और तीनों सेगमेंट को हैंडल करने का तरीका कितना इंटरेस्टिंग है। पहला सेगमेंट जो कि रिटायर्ड है, उनके साथ कॉन्वर्सेशन इज अबाउट व्हाई डू यू वांट हायर रिटर्न्स, यू वांट समथिंग सेफ, राइट? देन देयर इज अ सेगमेंट इन द मिडिल हु हैव किड्स 7-10 ईयर ओल्ड, तो वहां पे उनको कंपेयर किया बच्चों को पैसे के साथ और समझाया कि बच्चे बड़े होंगे तो you will need to send them, and you also need to send your money outside FDs. And then finally younger people focused more on consumption, because younger people are focused on buying new things, right? Because अभी वो उस एज में है, उनके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है नहीं, तो बट कितना लाइक बहुत ही क्लियरली समझा है सेगमेंट को। दैट्स व्हाई आई लव टॉकिंग टू पुनीत एंड दैट्स व्हाई वी वांटेड हिम टू स्पीक टू यू ऑल, कि वेरी क्लियर कि यार यंग है तो उन पे कंजम्पशन फोकस्ड, उनको इन्वेस्टमेंट इसलिए कराओ ताकि उनको कुछ कंजम्पशन कर सकते हैं, चाहे वो हनीमून हो या वो फोन हो या मैकबुक एयर हो, कुछ भी एनीथिंग दैट दे वांट। That's the way, that's how they will form investing habit, otherwise they will never form investing habit. For them telling them कि do an SIP for when you are 65, that will not happen, right? So that is very interesting. Any other things? Very important question, that have you seen, or what kind of mistakes have you seen your colleagues or people that you've seen in the industry commit? लोग किस तरह की mistakes commit करते हैं जिसकी वजह से उनको ultimately उनका business grow नहीं कर पाता? What kind of mistakes have you seen that people do in the industry? मैं अगर मैं बोलूँगा ना, तो normally क्या होता है कि अपन जब start होते हैं ना, just because AMC पर्सन से डील करते हैं, सबसे बातचीत होती है, तो उनका एक ही टारगेट होता है कि आपसे इक्विटी सेल करवाना। क्यों? क्योंकि इक्विटी रिटर्न देती है। अब अगर आप किसी से बात स्टार्ट करते हो, बात ही पहले रिटर्न नहीं करते,
भाई लेट्स से मैं एक मीटिंग में गया, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उसको बोला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, तो बोलता है क्यों? अब अगर मैंने पहला रीजन ये दे दिया कि इसमें रिटर्न अच्छा मिलता है, तो मैं खुद ही फंस गया। क्योंकि रिटर्न अच्छा मिलता है तो यार कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ कि रिटर्न अच्छा मिलता है, और जब रिस्क मतलब क्या है नाम है, अगर रिटर्न सामने वाले को मिलेगा तो रिस्क मैं क्यों लूंगा? अल्टीमेटली अपन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या करते हैं कि रिटर्न तो सामने वाले को मिलेगा लेकिन रिस्क अपन लेके आ जाते हैं। अपन जाके शाहरुख खान बन जाते हैं और बोलते हैं मैं हूं ना, तुम तो डालो पैसा। अब वो शाहरुख खान नहीं बनना है, शाहरुख खान नहीं बनना है, उसको समझाना है कि भाई एक्चुअली रिस्क क्या है। उसको अगर रिस्क समझा दी ना तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप वो इक्विटी सेल करते हो ना तो कंपनी वाले एक्चुअली वांट यू टू सेल इक्विटी, बट अगर आप सिर्फ इक्विटी सेल करोगे तो वो कभी भी आपको पूरा पैसा नहीं देगा, तो आपको डेट भी सेल करना है 100%। इनफैक्ट हम तो शुरुआती सब पार्टनर्स को बोलते हैं कि आप डेट या डेट टू इक्विटी वाले पोर्टफोलियो से करो, बिकॉज उसमें सेफ्टी भी है और एट द सेम टाइम वेल मैनेज्ड भी हो जाता है पोर्टफोलियो। और दूसरी चीज जो एसेट बनाने का तरीका है ना, एसआईपी तो क्या है कि बहुत लॉन्ग टर्म है, एसेट बनता है जल्दी एसटीपी और एसडब्ल्यूपी से। अगर आपको बड़ा पैसा लेना है तो आपको एसटीपी और एसडब्ल्यूपी को साथ में रखना पड़ेगा, राइट। So by the way guys, this okay. STP is the same as Smart Switch product that we have on mutual funds. हाँ बोलो प्लीज। SWP पे I have a कन्विंस करने का एक और है, अगर हो तो I can discuss with you। हाँ कि भाई SWP क्या होता है कि लेट्स से मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, इंडिया के अंदर या कहीं भी वर्ल्ड के अंदर सबको चाहिए फिक्स इनकम, एवरी इन्वेस्टर नीड्स इट। नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? राइट। ऑप्शंस क्या है? नॉर्मली जो लोगों के दिमाग में आता है सबसे बड़ा और जो एक ऑप्शन है वो है सैलरी। आदमी जॉब में क्यों फंसा हुआ है कि एक फिक्स तारीख को सैलरी आ जाती है, तो वो सबसे बड़ा नशा है। सैलरी छोड़ देते हैं, अब उसके बाद ऑप्शन क्या बचता है कि एफडी का इंटरेस्ट, ठीक है, जो वो वैसे ही कम हो रहा है, सबको पता है। तीसरा ऑप्शन जो लोगों को लगता है यार वो बेस्ट है, दैट इज द रेंट, कि आप एक अपार्टमेंट बाय कर लो, एक शॉप बाय कर लो, एंड यू विल कंटिन्यूअसली स्टार्ट गेटिंग रेंट फ्रॉम इट। अब मैं तो क्या करता हूँ कि उस रेंट को कंपेयर करता हूँ एसडब्ल्यूपी से। अब एक बहुत ही सिंपल सा है, लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम्हारे प्रोडक्ट में एसडब्ल्यूपी कितने परसेंट मिलेगी, तो मैं कहता हूँ 6% ले लो। तो कहते हैं 6% क्यों लेंगे यार, हमारे तो पोस्ट ऑफिस के अंदर 7% मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ यार पोस्ट ऑफिस में पैसा कम होगा क्या? तो कहते नहीं, मैं मेरे यहाँ तो कम भी हो सकता है। तो फिर व्हाई यू आर कंपेयरिंग मी विद द पोस्ट ऑफिस? तो भाई मैं तो पोस्ट ऑफिस हूँ ही नहीं। तो बोले किससे कंपेयर करें? मैं कहा मुझे प्रॉपर्टी से कंपेयर करो। किससे कंपेयर करो? प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी से कंपेयर करो, ओके। क्योंकि भाई वो एक ऐसा है ना जहाँ पे सबका दिल जुड़ा हुआ है, एवरीबॉडी थिंक्स कि यार प्रॉपर्टी से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैं पोस्ट ऑफिस और एफडी से क्यों वो करूँ, मैं तो प्रॉपर्टी से कंपेयर करूंगा। बोले कैसे करेगा तो प्रॉपर्टी से कंपेयर? मैं कहा सब बात करते हैं भाई प्रॉपर्टी में हाउ मच रिटर्न एज अ रेंट यू एक्सपेक्ट। लेट्स से यू हैव एन अपार्टमेंट, नॉर्मली जो रेसिडेंशियल में मिलता है यू गेट समवेयर अराउंड 3 to 4% एनुअली। वो बैंगलोर में तो 1.7 1.8। अच्छा, इट्स 1.7 ग्रेट। तो मतलब 1.8। और कमर्शियल प्रॉपर्टी पे? कमर्शियल प्रॉपर्टी पे है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बैंगलोर में 6-7%। बट उसमें रिस्क ये रहता है कि रेंट खाली रह गया 6 महीने तो बट बैंगलोर में 6-7% यील्ड इज देयर ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी। यही चीज पे डिस्कस करते हैं उनसे, हम उसको वही बोलता हूँ कि यार तो मुझे प्रॉपर्टी से कंपेयर कर, इतना तो समझ आ गया कि यू आर बाइंग एन अपार्टमेंट फॉर 1.8% रिटर्न एंड देन यू आर बाइंग ए कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर 6% रिटर्न। अब बात करते हैं इसमें रिस्क क्या है। भाई उस रेंट में रिस्क क्या है? अब मैं बहुत जल्दी जल्दी बता दूंगा, एवरीबॉडी नोज, पर किसी ने उसको लिस्ट नहीं कर रखा है। मेरे पास 10 पॉइंट है उसके रिस्क है। कि पहली सबसे पहले तुमने बोला कि यार उसमें रेगुलेटरी ऑफ इनकम हो ना हो, भाई प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ी नहीं। दूसरी चीज मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होगा ही होगा। राइट। तीसरी चीज उस पर आपको टैक्सेबिलिटी है ही है कि भाई इतना हायर रेंट ऐसा तो होगा नहीं आप बोलोगे कि यार मैं तो नहीं भरता हूँ, मैं तो टैक्स आप दोगे। दूसरी चीज एक और अगर एस्पेक्ट देखें कि अगर आपको वो चीज सेल करनी पड़ी तो इन हाउ मेनी डेज इन हाउ मेनी मंथ्स यू विल बी एबल टू सेल इट ऑफ एट द प्राइस यू एक्सपेक्टेड। भाई पहली चीज तो अगर आप सेलर हो तो आपको कभी भी वो रेट नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब प्रॉपर्टी ऑफ 1 crore विल फेच यू अराउंड 80 lakhs, क्योंकि आपको लेके और देके जाना है।
दूसरी चीज, आपको वो ऐसा तो नहीं आप आओगे और 3 दिन में पैसा खाते में आ जाएगा, वो आपको 3 महीने 4 महीने मांगेगा। सही बात है। दूसरी प्रॉब्लम की यार, आप अगर सपोज उधर हो नहीं, सपोज अगर क्लाइंट ऑफ योर्स इन बैंगलोर, मतलब हु हैज अ प्रॉपर्टी एट बैंगलोर एंड लिव्स इन यूएस, अब अगर वो वहां पे नहीं है तो कई बार वो जो टेनेंट है वो पेमेंट ऑफ रेंट में कई बार कभी आगे पीछे होता है, कई बार उसका मन यूं हो जाता है कि यार ठीक है ना, कौन सा आज सामने बैठा है यार, लेट इट बी। तो बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम कि लेट्स से सपोज किसी के पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अराउंड 5 करोड़, अब उसके पास 2 बच्चे हैं, मान लेते हैं मेन मार्केट ऑफ बैंगलोर में वो प्रॉपर्टी है, उसकी रेट 5 करोड़ है, अब वो चाह रहा है दोनों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना, वो कैसे करेगा भाई? प्रॉपर्टी मतलब एक शॉप है, शॉप को 2 आधे तो कर नहीं सकता, कचरा हो जाएगा। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब हम उसको ये कंपेयर करते हैं एसडब्ल्यूपी के साथ, ये सारे प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। सही बात है। एंड देन यू नो रेगुलरिटी ऑफ फ्लोज, आप भले यहाँ हो, यूएस हो, कहीं पे भी हो, यू विल कीप गेटिंग दैट मनी इनटू योर अकाउंट। टैक्स ना के बराबर लगता है, जब चाहिए पैसा 3 दिन में खाते में आएगा। सही बात। तो मतलब आपको अगर एस्टेट प्लानिंग करनी है, अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट्स वेरी इजी, 2 फोलियो बना दो, दोनों को अलग अलग नॉमिनी कर दो, राइट। तो मतलब हम उसको, वो आदमी क्या होता है, अपन उसी में उलझ जाते हैं कि यार पोस्ट ऑफिस या एफडी तो 7% दे रही है। अच्छा, अब वो कहता है, अभी तक उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मेरे को अगर उससे बिजनेस चाहिए था तो पहले मुझे उसको 8 से 9% देना था, विच इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। वो दिया है तो गलत है। सही बात है। एक्सपेक्टेशन उसकी एक्सपेक्टेशन है, अब उसकी एक्सपेक्टेशन 2 से 5% के। अच्छा, वो अब ये बोलता है प्रॉपर्टी के अंदर तो यार रेट भी बढ़ती, तो मैंने उनका मतलब पास का कभी भी मतलब मैक्सिमम 2008 का पीक था, तब भी अगर पैसा लगाया है तो अगर 10 साल वो रुक जाता है पैसा, 10 से 12 साल, तो आप वो 6% लेने के बाद भी उसका पैसा एक डिसेंट रिटर्न दे जाए। अच्छा, उसको डिसेंट रिटर्न क्यों चाहिए? क्योंकि पर्सन ऑफ 60 ईयर्स, ऐसा तो है नहीं कि 70 तक वो टाटा बाय बाय कर जाएगा, उसकी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नेक्स्ट 20-25 ईयर्स तो ही है। तो भाई इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, आज अगर उसकी रिक्वायरमेंट 1 लाख पर मंथ है तो 10 ईयर्स डाउन द लाइन 2 लाख पर मंथ होगी। अब अगर उसने इन्वेस्टमेंट ही ऐसा चूज किया है कि जिसमें पैसा बढ़ता ही नहीं, तो वो 10 साल बाद क्या करेगा? सही बात है। अब जब वो आज अपने बच्चों से पैसा नहीं मांग रहा है तो 10 साल बाद क्यों मांगेगा? तो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट ऐसे ही लेना है जो इन्फ्लेशन को भी बीट करता रहे और रेगुलेटरी भी रहे, तो वो हमारे पास है और उसमें बड़ा पैसा आता है। वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही चेंज कर दिया। हम लोग भी यही सोच रहे थे पोस्ट ऑफिस, बट प्रॉपर्टी से कंपेयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया। डे 1 पे ही मैं तो सीधा मतलब बात करते ही स्टार्ट ही करता हूं, यार प्रॉपर्टी से मत कम है, बैंक से मत कंपेयर करो। क्यों? मैंने कहा हमारे यहाँ तो पैसा कम होता है ना यार, वहाँ पैसा कम तो होता ही नहीं। तो वो पहला डिस्कशन ही खत्म हो गया। हम तो मार्केट लिंक्ड है। तो वो उसको किस तरीके से पेश करना है, तो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। और आराम से आदमी सुनता है, कन्विंस होता है और पैसा देता है। राइट, अमेजिंग यार। तो मतलब obviously there is so much that I can still ask, but I think so there are some questions, एक आध दो क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछता हूँ मैं पुनीत। तो हरिंदर से क्वेश्चन है, what are your suggestion for a fresher in this field? How should they reach the clients and what sales techniques you use to close a sale? Sorry, I think. Go ahead, please. भाई I have already told you कि different segments of clients से कैसे different बात करनी है। मतलब सबकी आपको रिक्वायरमेंट समझनी है। और वैसे भी मेरे हिसाब से जो सेल कॉल 10 से 15 मिनट में क्लोज होती है ना, वो बड़ा पैसा नहीं देती और लंबी भी नहीं चलती। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि अगर क्लाइंट मुझे कहता है कि नहीं मैं अगले 10 साल तो पैसा देखूंगा ही, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि साहब मेरे 100% क्लाइंट यही बोल के आए थे, उसमें से कई लोग तो कब से छोड़ के चले गए, और आप पैसा क्यों नहीं देखोगे? मैं तो आपको खुद को सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, अपना पैसा देखो, क्यों नहीं देखोगे? तो वो अल्टीमेटली उनको ये चीज, अब लोग क्या करते हैं कि यार एक 50,000 की SIP है, पूरी इक्विटी में दे दी। अब वो पूरी इक्विटी में नहीं, मैं थोड़ा बहुत डेट तो रखते हैं, वो शायद तुम्हारी सजेशन भी वही है कि भाई डेट टू इक्विटी शिफ्ट होना ही बेटर है। तो थोड़ा बहुत डेट का पोर्शन, मतलब डेट पता है क्या है, डेट को अगर मैं वापस करूंगा तो वो एक तरह से कार में ब्रेक का काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं तुम्हें एक गाड़ी दूं जिसमें ABS है और खाली रोड है, तो तुम 100-120 पे भी चला लोगे। लेकिन अब मैं वही कार तुम्हें दे रहा हूँ, ये बोलिए इसमें ब्रेक नहीं है, तुम्हारी मैक्सिमम स्पीड क्या जाएगी? सही बात है।
तो आपको डेट को तो आदमी कहता है इसमें रिटर्न नहीं आता, नहीं भैया ब्रेक से वैसे भी स्पीड बढ़ती नहीं है, लेकिन गाड़ी कंट्रोल में चलती है। सही बात है, दैट इज अ ग्रेट पॉइंट। बट एनीथिंग दैट यू वांट टू सजेस्ट कि यार पहले 10 क्लाइंट के लिए ये ऐसे काम करो, लाइक जैसे हम लोग तो यही बोलते हैं कि अगर आप इंडस्ट्री से नहीं हो तो पहले तो अपने उन लोगों के पास जाओ जो आपको ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस कर लो, टर्म इंश्योरेंस करो तो रेवेन्यू तो हो जाता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में थोड़ा टाइम लगता है ना, जब तक आपका AUM थोड़ा एक लेवल पे नहीं पहुंच जाता तब तक तो इनकम ज्यादा आती नहीं है, राइट? यार भाई मैं सही बताता हूँ, अपने साथ बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि पीपल स्टार्ट म्यूचुअल फंड्स बाय सीइंग हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी दे कैन अर्न फ्रॉम इट। बट अगर आपको क्लाइंट को कन्विंस करना है ना, देखो क्लाइंट पता है किस समय चेक काटता है, वो एक ऐसा पॉइंट आता है सबके डिस्कशन में आता है, सबको पता है वो कि जब उसको ये ट्रस्ट हो जाता है कि ही नोज मोर देन मी, तो आपको खुद को इतना तो तैयार रखना ही पड़ेगा कि किसी भी लेवल पे क्लाइंट आ जाए, आपको उससे ज्यादा पता होना चाहिए। जिस दिन वो उसको उस जिस समय उसको ये चीज लग जाती है कॉन्फिडेंस आ गया, तो इसलिए नॉलेज के ऊपर तो डेली आप स्पेशली फॉर आवर कम्युनिटी डेली का 1 से 2 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब डेली के अपडेट्स हैं, सब कुछ आपको अवेलेबल है ऑन नेट, बट वो क्या होता है लोग पढ़ना छोड़ देते हैं। सही बात है। तो डेली की स्टडी, मतलब कई बार होता है कि मैं मतलब नॉट फ्रॉम आवर कम्युनिटी AMC पर्सन के भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, और वो मेरे साथ तो वो भी डिस्कस करने में एक बार घबराते हैं कि यार ये कुछ भी बोल दिया तो ये 12 बजे तो अपने आप को इतना तैयार करके जाओ क्लाइंट के सामने, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ द सेल्स पिच, भाई आप जाओ, मैं अगर एक सिंपल सी बताऊं मैं क्या करता हूँ, मैं अगर क्लाइंट के सामने बैठा हूँ तो पहले 10 से 15 मिनट तो सिर्फ वही बोलता है, पर मैंने देखा अपने में से बहुत सारे लोग को 10-15 मिनट सुनने का तो वेट ही नहीं करते, अपन जाते बोलना स्टार्ट कर देते हैं, चलो ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, ये कर लो वो कर लो, आप ये देखो रिटर्न शीट दिखाने लग जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि यार तो माल ही बेचना है। सही बात है, एक्चुअली यस यू आर राइट, दैट इज सो ट्रू। अगर जब तक ये लगेगा ना सामने वाले को तो माल चिपकाने आया है या माल बेचना आया है, वो क्या पैसा देगा, कुछ भी नहीं देगा। और अगर उसको ये फील आ गई नेक्स्ट हाफ एन आवर कि यार एक ऐसा बंदा है जो मेरी सुनता है, मुझे समझता है और मेरी जरूरत के हिसाब से मुझे प्रोडक्ट देगा, तो उसके बाद आपको सेल्स नहीं करनी पड़ती, उसके बाद खुद आता है पैसा। उसके बाद तो आई हैव आल्सो सीन पीपल गोइंग फ्रॉम स्टार्टिंग विद 1 लाख रुपीस एंड देन गोइंग अप टू 5 crores आल्सो, राइट? बिकॉज दिस इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। एक बार ट्रस्ट बन गया, और वो ट्रस्ट बनने के, वही ट्रस्ट हम भी ये बोलते हैं, ट्रस्ट बनने के 3 पिलर्स हैं। एक पहला पिलर है फैमिलियरिटी, दूसरा पिलर है आपका नॉलेज, और तीसरा पिलर है आपका कन्विक्शन की जो आप कह रहे हो वो आप खुद के लिए करोगे या नहीं करोगे, राइट? आई थिंक इन 3 चीजें अगर होती है तो ऑटोमेटिकली वो क्लाइंट वांट्स टू। मेरे को एक और चीज याद है, इसमें मेरा एक क्लाइंट है, जब भी मार्केट गिरता है वो हमेशा फोन करता है, भाई क्या लग रहा है, मैं कुछ नहीं यार फॉल आते रहते हैं, पर वो उसने एक दिन तो बोल ही दिया, भाई मैं वेट कर रहा हूँ किस दिन तू घबराए, किस दिन तू घबराएगा जिस दिन तू घबराएगा उस दिन मैं पैसा निकाल दूंगा, पर तेरी आवाज सुन के और जो टेंशन होती खत्म हो जाती है। राइट, तो वो वेट कर रहा है कि जिस दिन मैं घबराऊं उस दिन वो पैसा निकाले, वो जो तुमने बोला तीसरा पिलर कन्विक्शन, conviction means I am not convinced about the market, but then I am convinced about this product. मतलब इस प्रोडक्ट में इतनी ताकत है कि वो जो मैं है ना कि मैं उन्हें मैं जब चाहिए पैसा दिला दूंगा, मैं कहता हूँ मैं नहीं भी हूँ तो भी तुम्हें पैसा मिल जाए। सही बात है भाई आज आपने पोस्ट ऑफिस में डाला है, कहीं भी डाला है, तो फिर आपको चक्कर काटने ही काटना है। यहाँ पे मैं नहीं भी हूँ, मोबाइल पे इतने सारे एप्स हैं, कहीं पे बटन दबाओगे आपको पैसा मिलेगा। सही बात है। तो Karan, actually I'll answer your question, which is to Puneet's point also, that which we have also experienced, that what people when they are doing taking investment decisions online, they buy basis last year's return, कि last 1 साल में किसका रिटर्न था उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और फिर वो जब 2018 में तो ये बहुत हुआ क्योंकि स्मॉल कैप्स लोगों ने खरीदे, इसीलिए स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट इसलिए क्योंकि वो 1 साल में 50-60% रिटर्न पे थे, राइट? बट एक बार जब फिर वो चीज देख लेते हैं और फिर अगर आप उनको समझा पाते हो कि देखो अगर आप if you have need to speak to, then this will not happen with you, because this is not my philosophy कि भाई लास्ट 1 साल का रिटर्न देख के मैं तो आपको इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से पोर्टफोलियो बना के दूंगा। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू, that is what your clients, even younger clients, if they get confidence from you, then they will work with you only. Secondly, penetration is so low that if you speak to 10 people, there will be at least 6-7 people या तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रखी है, क्या टर्म इंश्योरेंस नहीं होगा, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, राइट? सो
selling opportunities with 8 out of 10 people that in my experience basically जब भी मैंने ऐसे सेशंस भी किए, जब मैं पोल भी करता हूँ कोई भी, तो पुनीत मैंने तो इंडस्ट्री के देखा है, इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी जब मैं ऐसे कुछ करता हूँ कुछ और पोल अगर करते हैं तो पता पड़ता है कि 8 में से 10 लोगों ने तो टर्म इंश्योरेंस भी नहीं है, which is the most basic product even though if you have salaries, right? तो इसलिए पेनिट्रेशन की अपॉर्चुनिटी बहुत है इंडिया में. आई थिंक दैट इज व्हाट is the moot point. And secondly, I'm amazed ki 1,000 clients should be our ambition. Our client ambition should not be per person or per as a partner 30 40 50 clients. Our ambition should be 1,000 clients because it is very much possible. अगर पुनीत ने 4-5 साल में किया है तो हम सब लोग भी कर सकते हैं. Right? Anything else, Puneet, that you want to add or finish with? Anything that you think will help everyone? कुछ भी ऐसी चीजें दिमाग में? नहीं, the only thing is actually we are in a beautiful industry. It actually takes care of you if you are taking care of the interest of the investor. और अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है. मतलब अगर अपन ये देखते हैं कि यार इतना एसेट है, इतने म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं, कुछ भी नहीं. तब एक्चुअली आपका जब एक बार इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ता है ना, देन वो जिस तरीके से पैसा वो देता है तो आप खुद अमेज हो जाता हो. आप कई बार खुद भी सोचते हो यार इतना पैसा दे सकता है. राइट. तो ये अभी वी आर इन अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री. बस इसको सर्व करते रहो. और जिस समय अपन ने ये सोच लिया ना कि इन्वेस्टर फर्स्ट, मतलब हर एस्पेक्ट में, उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं. राइट. आई एग्री मैन. अमेजिंग यार. तो मैंने आई हैड आस्क्ड फॉर 30 मिनट्स ऑफ योर टाइम, ऑलरेडी 45 मिनट हो गए हैं. तो थैंक यू सो मच. सुकृति, ओवर टू यू. Thanks, bhai. Thanks. Announce our January contest winners. So let's put your hands together to congratulate Ms. Namrata Singh for the category of insurance topper. Congratulations, Ms. Namrata. And the second category, most welcome. And the second category is for Priyanka. Just a minute, Namrata, sure. Would you like to say something? The first month on the platform, I am more than happy, to be very honest, with all the support that I have been receiving from all of you. So really, really grateful to all of you. Thank you very much, Namrata. Do you want to share a little bit on your experience overall? Because I still remember when you first interacted with us, you still had a lot of doubts whether working with a platform or working independently on own would that be more of a beneficial. So what clicked, and what do you feel is a better way? So see, I mean, working with a group of people is always good, because you have somebody to fall back on, you have somebody to clarify your doubts, somebody to clarify whatever you have in your mind. So that's a big support, I think. And that's what at least keeps me going. So I'm really thankful to all of you, genuinely, for that. Thank you very much, Namrata. Priyanka, you can move forward. Yeah. So our next category is for MF Topper, and the winner is M. Singla. Congratulations, M. Singla. Okay. And our next category is for our ELSS Topper, and the winner is Naveen N. Congratulations, Mr. Naveen N. Okay. And our third category is our life insurance bonus, and the winners are Nirban Nandi and Priya Krishnamurthy. Congratulations for both of you. I hope Priya is there, so she can share her experience, if so. Yeah, hi. I mean, it's great that these contests are always an encouraging factor for us to push for the last mile. So thank you so much for the support and the encouragement. Thank you, Priya. So our next category is for unlisted stocks. So our winners are Krishna Kumar Patak and Shubhra S. Congratulations for both of you. And our next category is for 3 health plans for the month of January. And the winner is Raghavendra. Congratulations, Mr. Raghavendra. And our next category is for 5 new clients for our January month. And our winner is Anupam Yadav. Congratulations, Mr. Anupam Yadav.
And our last category, which is nevertheless activation bonus. And here we have a very big list of achievers. I would like to congratulate each one of you and would like to see you all in coming months as a winner. Once again, congratulations to each one of you. Thank you. Over to you, Sukriti. I think it was great discussing all these things with you guys. And thank you, all of you, for spending your Sunday evening with us. Hope it was an hour well spent. And all of you enjoyed as much as I did. And I found it enlightening. Congratulations to all prize winners. Wishing you all good luck for the February contest. We'll be soon launching that too. Remember, February is a shorter month. Make the best use of it. And once again, wishing you all a great month ahead. Keep creating wealth. Thank you so much.